Good morning, class. So today we are going to see, in the last class we have already seen what do you mean by class, object, inheritance, capsulation and all features of object oriented programming. Today we are going to see how to define the classes, how to define the object, how to add the data member function inside the class, what do you mean by access specifier and all. Okay, we will see one by one. First, what is the syntax of defining the classes? Syntax of defining the class. So how we will define the class then? Whenever we are going to define the class, first of all we have to write the class keyword, then name of the class. In that case we have given demo, and every class is start with the curly braces and end with this curly braces, open and close curly braces and semicolon. So that is known as what? Body of class. So that is known as body of the class. Okay. So in body of the class we can define or declare n number of variables or methods, or we can say functions. So how we will define the functions and method inside the class, we will see one by one with one example. Okay, let's suppose int a I have defined inside the class. Now I have defined some function like return type. First we have to give the return type, as we already studied in C language and data structure in last semester. So now simply I am going to define the function. So functions, first it will take the return type, then function name I have given fun, and argument as a int a1 I have given. Okay, and that is what? That is a body of the functions where we can write the logic. For that case, in that cases simply I am going to write one statement. Okay, so this is body of the function. Likewise, we can define n number of variables, n number of attributes or data inside the class, or we can define the functions inside the class. Okay, now we will see how to define the object, how to create the object of the class. First, void main. This is again a function where we will define the, or we will create the object of the class. So whenever we are going to create the object of the class, first of all we have to give the class name. In that case I have demo and object obj. Okay, now we can access the data member. How we will access the data member of the class? So data member is what? Int a and function fun function. Two data member we have, one data member, one member function we have. So one by one we will access from the main method. Okay, so let's suppose obj. So whenever we are going to access the data member, we have to write data member or member functions, we have to write the object name dot a equals to, I am going to write some value, then we will use obj dot fun function we are going to call, and I am going to send the value. Let's suppose I have given a, this is age, let's suppose we have given 1000. Okay, so कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें भी आप जब भी आप ऑब्जेक्ट को फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, एंड वट एवर द पैरामीटर वी आर गोइंग टू पास, वी हैव टू पास फ्रॉम देयर ओनली. ओके, and as we know that C and C++ every statement is terminated with the semicolon, so we have given the semicolon. Okay, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने की चीज़ ये है कि ये अगर हम यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर की बात करता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो मैं इसको करता हूँ प्राइवेट. वी हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. हम इसको लिखते हैं प्राइवेट, protected and public. So we can define the, or we can declare the data as a private, protected
or public, right? So how we will define this? So what is the meaning of private and all, right? We will see. Let's suppose I have given defined this public int a and fun. So whatever the data we are going to define after this public and colon, all the data and member functions become the private of this class. So private in the sense we cannot access this data outside the class. This data can only access inside the class or member of the class. Not outside member can access this data because this is a private data. Okay. So whenever we are going to call this obj.a और हम यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो विल गेट सम एरर, विल गेट सम एरर. आपको मैं एरर भी दिखाता हूँ. ओके, कैसे आपको क्या एरर मिलेगा वो भी देखते हैं. ओके, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है? सेव करने की ज़रूरत है. नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस प्रोग्राम. I'm going to save this program, my first CPP. Okay, I have saved this program. Now I have 4 errors. Syntax, declaration syntax error, right? So that statement is a comment line. Now again I am going to call this demo a is not accessible. अब देखो आपको क्या है कि ये a is a private member. A is a private member and that cannot access outside the class, and in that case I am going to access this a variable outside the class. Okay, so यहाँ पर आपको एरर आ रहा है कि ये मेंबर एक्सेस नहीं हो सकता है. लाइकवाइज हम इसमें भी करेंगे, तो इसमें भी देखना आपको इसके लिए भी एरर आ रहा है, इसके लिए भी एरर आ रहा है कि फन इज व्हाट, फन इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज दिस इज ए प्राइवेट मेंबर. तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पब्लिक लिखना पड़ेगा. पब्लिक. Once we have given this public keyword, now we can access this data and member outside the class. So आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पब्लिक दिखा आपको, कोई एरर नहीं है. आपको आउटपुट यहाँ पर मैंने कुछ दिखाया नहीं है. लेट्स सपोज आप यहाँ पर कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं. सी आउट के थ्रू आपको क्या करना है? ए की वैल्यू, लेट्स सपोज आई वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. आई हैवंट गिवन दिस ए. लेकिन आप इस बात का एक ध्यान रखिएगा, जब भी आप सी आउट लिखने जा रहे हैं, सी आउट का डिफिनेशन आपको क्या है? क्योंकि सी आउट क्या है? सी आउट क्या है? आपको ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है. दिस इज ऑपरेटर एंड दिस इज सी आउट. दिस इज व्हाट? दिस इज ऑब्जेक्ट. ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इसे एक्सेस कर रहे हैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैं बताऊँगा इन डिटेल. ओके, क्या होता है, बट फॉर द टाइमिंग आपको ये जानना है कि इसका डिफिनेशन नहीं मिलेगा. इसका डिफिनेशन नहीं मिलेगा तो आपको एरर शो करेगा. देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर अनडिफाइंड सिंबल सी आउट. उसको सी आउट को डिफिनेशन नहीं मिला. सी आउट है एक्चुअली क्या? फॉर दिस वी हैव टू import the, or we can include the hash include. We have to give the hash include statement, and then we will give the iostream.h header file. This is the header file, and that header file contains the definition of what? Cout and cin. We will use the cin afterwards. Okay, now we are going to save this. Okay, we have saved this. Now we will get the output. A is equal to 1000. A is equal to 1000. So जो मैंने यहाँ से वैल्यू पास किया है वो वैल्यू आपको यहाँ पर मैंने इसको रिसीव किया A1 में, और A1 के वैल्यू को मैंने A में असाइन किया. नाउ सिंपली आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दिस वैल्यू. दिस इज 1000 ओनली. ओके, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे आपको वहाँ पर वो दिखाई पड़ेगा. लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 2000 कर लिया. ठीक है, कंपाइल कर लिया और रन कर लिया, 2000 दिखा दिया. आपको दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रहा है, पहले का वैल्यू भी आ रहा है, फिर दूसरा वैल्यू भी दिख रहा है. आपको चाहते हैं कि पहले वाला सारा वैल्यू क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, और जो भी नया आउटपुट है आपको दिखाए. इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत होती है क्लियर स्क्रीन. सो CLRSCR, क्लियर स्क्रीन का क्या मतलब है आपको मैं बता देता हूँ. क्लियर स्क्रीन क्या करता है? जो भी प्रीवियस आउटपुट है उसको क्लियर कर देता है, स्क्रीन को साफ कर देता है, क्लियर कर देता है. लेकिन जब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस क्लियर स्क्रीन, इसका भी डिफिनेशन आपको, अगर इसको कंपाइल और रन करेंगे एरर मारेगा. क्लियर स्क्रीन का इसको प्रोटोटाइप नहीं मिल रहा है, इसको क्या है पता नहीं चल रहा है. देन वी हैव टू गिव दिस हेडर फाइल. हेडर फाइल कौन सा है? इसको इस केस में भी हम क्या करते हैं? हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल वी हैव टू इंपोर्ट.
जब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे तब इस प्रोग्राम को आराम से हम रन करा सकते हैं, नो एरर, now we are getting the output a equals to 2000. okay, so this all about the simple statement जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी क्लास को और किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं C++ के अंदर और उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट मैंने बताया है। हमने बताया आपको कि ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, these are the header files. Header file will contain the definition of the functions and all. Cout is all about the इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। सो यहाँ पर क्या होता है, आपको सी आउट एंड सी इन का डिफिनेशन होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी हैश इंक्लूड conio.h, कॉनिकल इनपुट आउटपुट। वेल हेयर वी आर यूजिंग द सी आउट क्लियर स्क्रीन, सो वी आर यूजिंग द क्लियर स्क्रीन मेथड और फंक्शन। इसका डिफिनेशन कहाँ मिलेगा उनको, conio में मिलेगा। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिफाइन द क्लास। सो एवरी क्लास विल स्टार्ट विद द क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम। फॉर दिस केस आई हैव गिवन द डेमो। ओके, देन अब अगर यहाँ पर देखेंगे कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल से लेना है, स्मॉल से भी लेंगे तो काम करेगा, बट क्या है, दिस इज गुड प्रैक्टिस कि स्टार्टिंग विद द कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लास शुड बी कैपिटल। ऐसा 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 एक मानते हैं हम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू गिव दी कैपिटल क्लास नेम, इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। सो अभी आपने देखा कि इस क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। देन हाउ वी विल डिफाइन द फंक्शन एंड हाउ वी विल डिफाइन द डेटा। किसी भी डेटा को डिफाइन करने के लिए क्या है, डेटा टाइप देंगे, इंट दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, लॉन्ग दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं। इस तरह से हमने आपने क्या किया, उस डेटा का नाम दे दिया ए, एंड हमने फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन का क्या है आपका टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन नेम इज फन, एंड नाउ वेयर वी हैव गिवन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर हमने सिंपल वी हैव गिवन द लॉजिक। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू असाइन द a1 इनटू a, और सिंपली वी हैव डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ a। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, सी आउट स्टेटमेंट जो भी आप देंगे लेस देन के बाद ये आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। तो ये आपको क्या है, फॉर्मेटेड माने फॉर्मेटिंग के लिए क्या है, a इक्वल्स टू दिखेगा। उसके बाद a की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या पास किया था हमने, 2000, तो यहाँ पर आपको 2000 दिखेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल स्टेटमेंट आई हैव गिवन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिफाइन द फंक्शन, व्हेनेवर वी आर डिफाइन द क्लास एंड ऑल, बट जब तक आप मेन मेथड नहीं बनाएंगे, until unless we can define the main method, there is no use of this class and all, right? So first of all we have to define the main method. main method से क्या होता है, कंपाइलर जब भी स्टार्ट करता है तो स्टार्ट विद द मेन एंड एंड विद द मेन। एंड से स्टार्ट करता है, एंड से आपको स्टार्ट करता है, एंड से ही आपको मेन से ही एंड करता है किसी प्रोग्राम को। तो समटाइम्स को कहते हैं कि मेन इज अ व्हाट, मेन इज अ ब्रेन ऑफ द प्रोग्राम। सो इन दैट केस we have to define the main method। main method में define कर दिया, और इस main method के अंदर what we are going to do, we are going to define the object, इसको बोलते हैं object। we are going to define the object of demo class, and demo class अगर हम इसका object नहीं बनाएंगे तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, a को एक्सेस नहीं कर सकते, फन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, then we have to क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। जैसे इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर जितने भी डेटा हैं सबके लिए वो क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन ले लेगा, मेमोरी लोकेशन कर लेगा। ओके, नाउ वी कैन एक्सेस obj.a। obj.a इन द सेंस नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस द a variable that has been defined in which class, demo class। now we are simply I have given some integer value because a is what, integer only। so likewise again I am going to call the obj.fun function। fun function क्या करेगा, आपको जो भी पैरामीटर हम भेज रहे हैं इसके साथ fun function is simply is going to call this fun, and whatever the value we are going to send is going to receive in a1, and finally we are going to assign the a1 into a। okay, this is the simple statement। ये आपका C++ का पहला प्रोग्राम बनाने का है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने आपको इसमें एक्सेस स्पेसिफायर भी बताया है। एक्सेस स्पेसिफायर कितने तरीके के होते हैं आपको मैं बताया है। एक्सेस स्पेसिफायर हम ऐसे प्राइवेट दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड दे सकते हैं, पब्लिक दे सकते हैं। आपको डिफरेंस पता चला होगा प्राइवेट एंड पब्लिक में। प्राइवेट में मेंबर इज अ सच काइंड ऑफ मेंबर दैट कैन ओनली एक्सेस इनसाइड द क्लास और विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्लास मेंबर्स दैट कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। ओके, और आउटसाइड मेंबर्स। पब्लिक मेंबर को कोई एक्सेस कर सकता है, क्लास के अंदर कर लीजिए, क्लास के बाहर कर लीजिए, कोई मतलब नहीं होता है इसका, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द पब्लिक। सो व्हाट अबाउट द प्रोटेक्टेड? Protected is a such kind of access specifier that is
So whatever the function or whatever the data we are going to define under the protected, that can only access by the derived class. So what is the derived class मैं बताऊंगा आपको अभी, जब इनहेरिटेंस में आपको बताऊंगा एट द टाइम आई डिस्कस दिस थिंग्स. ओके, प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा. ओके, दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट आई कैन राइट इन दिस. ओके ओके, अभी अगर आपको क्या करना है देखेंगे. अभी यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एरर कुछ भी नहीं है, आउटपुट नहीं दिखा रहा है. लेट्स सपोज आई वांट टू सी द आउटपुट क्या है. तो गेट सी एच एक सी का फंक्शन है जिसका डिफिनेशन क्या है आपका conio.h में है, जिसके थ्रू क्या करता है स्क्रीन को होल्ड करके रखता है. दैट विल होल्ड द स्क्रीन. जब तक हम कोई से इनपुट नहीं देते तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखता है. दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट गेट सी एच फंक्शन. गेट कैरेक्टर, दिस इज गेट कैरेक्टर. ओके, सिंगल कैरेक्टर ये लेता है. सेव. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सेव दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस. a equals to 2000. This is all about the simple program I have written, I have compiled and finally I have executed and we are getting the output. Okay, so till now I don't think so कि आपके पास कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल तरीका है. अगर आपके पास कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में दे दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, फिर उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जो सभी डाउट आपके पास है. ओके ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सी वन मोर एग्जाम्पल. हम सिंपली उसको सेव एज करते हैं sum.cpp. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सम. तो अब तो सबसे गुड प्रैक्टिस क्या होता है कि आप जो भी प्रोग्राम करते हैं उसका एक कमेंट लिखिए. आप उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. क्या करने जा रहे हैं? सिंपली व्हाट गोइंग टू ऐड टू इंट वैल्यू. तो जब भी कोई आपका प्रोग्राम देखे तो आपको समझ में आ जाए कि क्या कर रहा है बंदा, क्या करने की कोशिश कर रहा है. तो सिंपली वी आर गोइंग टू ऐड टू इंटीजर वैल्यू. ओके, दैट क्लास नेम इज व्हाट सम आई हैव गिवन. ओके, एक एग्जांपल है इसका, प्रॉपर एग्जांपल इसका देख सकते हैं. अभी अब आपको देखते हैं इसको हमने प्राइवेट में किया है. नो नीड ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर, वी हैव ऑलरेडी गिवन. Private, I have declared private and we have declared variable as a private and function as a public, because this function need to call outside the class. मेन से इसको कॉल करने की ज़रूरत है. ओके, यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं a and b. ओके, और इस फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न किए, खाली भी हो सकता है, कुछ ज़रूरत नहीं का एवरी टाइम वी हैव टू पास द वैल्यू. हम यहाँ से वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू कैसे आएगा आपका ए और बी का. तो इसके लिए हम क्या करते हैं सी आउट. वी विल गिव सम मैसेज टू द यूजर इंटर टू इंट वैल्यू. हमने यूजर को ऐसा मैसेज दिखाना है, स्क्रीन पर फ्लैश करेगा ये इंटर टू इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू. ओके, यहाँ पर हम सेमी कोलन, एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमी कोलन, डबल कोट. ओके, सो अगर आपको इनपुट लेना है, अभी इनपुट लेने के लिए मैं आपको नहीं बताया हूँ, अभी इनपुट लेने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे इनपुट लेते हैं. हाउ विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, सो वी कैन यूज दिस सी इन फंक्शन. सी इन फंक्शन greater than symbol we are using. This is operator. Again this is operator overloading. Okay, and कौन से वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है. लेट्स सपोज वी हैव गिवन a and b. So now simply I am going to take the value from the user in variable a and b. We are going to store this value in a and b. User लेट्स सपोज आपको क्या करेगा, यहाँ पर दे दिया उसने 5 and 10. तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा, a में, और b में कैसा हो जाएगा 10. तो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट आई हैव रिटन. ओके, सो यहाँ पर हम इस फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं, सम. I have given the sum. Now what we can do, now we can define one more function, that is what, that is the show function. In show function में क्या करेंगे, now what we are going to do, we are simply we are going to display the value of a and b. Okay, input ले लिया है. now we have to write the, एक और वेरिएबल लीजिए जहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे, दैट इज s. Okay, now we have written s equals to a plus
B. Now we have add the A and B, or we have stored the value in S. Now we are going to display this S, right? See out sum. So sum is what? हमने sum को कहाँ स्टोर किया? S में. ओके, नया लाइन चाहिए होगा आपको, तो नया लाइन से आपको दिखाएगा इंडेल स्टेटमेंट देते हैं, जहाँ से नया लाइन से आपका वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता है, उसको हम यहाँ पर सेव करते हैं. नॉट simply I am going to save this, and now I am going to call this class name is what? Sum. In that case I have some object, then obj, no need of this one. Then first is what? Sum function, and second is one, no need to pass this value because we have already taken the value from the user. Now I am going to call obj dot show function. So function will display the value, what is the sum of A and B. Okay, and we have saved this, and I am going to compile and execute this program. Enter value we have given 5 and 10, and what is the value of A and sum of 5 and 10? This is 50. This is the output we are getting. Okay, so इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं, किसी फंक्शन को लिख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं. किसी भी क्लास के अंदर हमने दो फंक्शन बनाया है. इन दैट केस वी हैव यूज्ड टू फंक्शन इनसाइड द क्लास, सम फंक्शन एंड शो फंक्शन. एंड इन सम फंक्शन वी हैव रिटन द लॉजिक, वी हैव टेकन द वैल्यू फ्रॉम द यूजर ए एंड बी एंड स्टोर किया उसको. नाउ सिंपल वी आर गोइंग टू add the two value A and B. We have add this value and we have store in a S. Now we have display this sum. Okay, तो sum में आपको ऐसा कुछ formatted दे दिया हमने, sum equals to, then we have display the value of S, जो भी इसका sum होगा उसको display करेगा. And now in a main method, first we have to create the object. We have created the object, then we have used the obj dot sum, and then we have called the obj dot show function. गेट सी एच फंक्शन आपको क्या होता है मैं बताया था, आउटपुट को होल्ड करके रखता है, जिसके आप आउटपुट दे सकते हैं. वैसे इसका काम क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर लेने के लिए, वो सिंगल कैरेक्टर का वेट करता है. ओके, ये सिंपली इज वेटिंग द सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर. दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल example of how to define the classes, how to create the object, how to call the data member, how to call the member function, what is the mean of public, private and protected we have already seen. Okay, इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे का क्या चीज़ है, आपको क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को. ओके, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच. कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट लाइन में मुझे लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.